morning, everyone. 11th Commerce BA, chapter number 5, Forms of Business Organizations, Part 1. बिजनेस इंडस्ट्रीज देखा जाए माइनर से लेकर के मेजर होती है छोटे से बड़ी, तो उसको हमें कैसे देखना है वो हम देखते हैं. सो नाउ इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर. Along with the time, the needs of man has increased and become varied. जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता गया, ह्यूमन की वैराइटीज़ की डिमांड बढ़ती गई. मैन बिकम इनकैपेबल टू सेटिस्फाई हिज नीड्स बाय हिमसेल्फ, सो ही नीडेड द हेल्प ऑफ अदर पीपल्स. ही हैज़ not satisfied their own things, so he wants to need a other person's help. Thus the trading activities began थ्रू बार्टर सिस्टम. उस टाइम पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी वो बार्टर सिस्टम के ज़रिए होती है. बार्टर सिस्टम मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बाय गुड्स एंड सर्विसेज. देर आर नो प्लेस ऑफ मनी. वहाँ पे मनी का कोई प्लेस था नहीं. Therefore, a class of peoples come into existence in the society who started spending time and energy to satisfy the needs of peoples by exchange activities of goods and services and money. And after some time, हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्लेस पर गुड्स एंड सर्विसेज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, प्लस मनी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं. दिस क्लास वॉज कॉल्ड ट्रेडर्स. इस तरीके का काम का जिन्होंने स्टार्ट किया, दैट क्लास एंड दैट ग्रुप ऑफ पीपल्स नोन एज ट्रेडर्स. So, for activities of purchase and sell, they introduce a different arrangement, thus different forms of business organizations such as sole proprietorship, partnership, firm, Hindu undivided family, HUF, cooperative society, and joint stock companies came into existence one after other. एक के बाद एक जैसे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ती गई और ह्यूमन बींग्स अलोन उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वैसे वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होते गए. फर्स्ट हमारा जो फॉर्म है बिजनेस का, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. चलिए देखते हैं ये क्या कहता है. The form of sole proprietorship is the oldest and simple than other forms of business organizations. This form came into existence right from the beginning of trading. Whenever the trading activity started, the first form of the business is sole proprietorships. It is the oldest and simple terms and types of the business organizations. In rapidly changing world, various forms of business came into existence and got developed, but this oldest and simple forms or system is still in the existence. शुरुआत में यही फॉर्म एग्जिस्ट हुआ था और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट भी हुआ. नाउ मीनिंग ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप. Sole proprietorship is such a form in which the firm is owned, managed and controlled by only on one person. Means what? Here is only on one person is owner, manager or a controller. Only one person invests capital, starts and develops business and look after the activities of the business like purchase, sell and the result of business such as a profit and loss are borne by him only. यहाँ पे कुछ भी मिलता हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसी को बेयर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वही बिजनेस का ओनर है, वही बिजनेस का मैनेजर जो एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है और वही बिजनेस को और कंट्रोलर भी होता है. अकॉर्डिंग टू लुइस एंड हेनरी, सोल प्रोप्राइटरशिप is such a form of business organization in which there is only one person at the top who is responsible, who directs activities of business and bears the risk of failures only by himself. लुइस एंड हेनरी ने ऐसा ही बताया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्मेशन है बिजनेस का जहाँ पे एक ही पर्सन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है. ही इज़ ओनर, manager and controller, so he has a responsible for the all the type of activities.
जो भी रिस्क होगा, जो भी फेलियर्स होगी, वो उसी को बियर करनी पड़ेगी. From the definitions, one can understand that a lone trader or a sole proprietor is only and wholly responsible. Whole business is carried out under his directions, and the risk of business like loss or insolvency rest on his shoulders only. उसी के शोल्डर्स के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई दूसरा उसके अंदर बेयर कर सकता नहीं. सो हियर इज ओनली ऑन वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, यहाँ पे आपको बता दिया जाए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, दे मस्ट बी कम्स इन द 5 और 3 मार्क्स इफ एवरी पॉइंट्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट आता है easy to establish. The process of establishing the sole proprietorship firm is very easy. Complexities of law do not affect. Any person can start lawful trading at any place of his liking. वो जहाँ पसंद करना चाहे, जिस प्लेस पे स्टार्ट करना चाहे, वो स्टार्ट कर सकता है. यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या गवर्नमेंट के लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा नहीं. You are free from the rules and regulations or law of the government. So जो प्लेस आपको पसंद आए वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे आपने अपने आसपास में बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी, वो शॉप का ओनर एक ही पर्सन होता है, चाहे उससे कहीं से गुड्स को परचेस करके लाना पड़े या किसी कस्टमर को सेल्स करना पड़े, वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो भी उसका होगा और वहाँ पे जो भी लॉस होगा वो भी उसी का होगा. सेकेंड पॉइंट आता है कैपिटल. In sole proprietorship, the owner himself invests the capital. जो ओनर है कंपनी का, इंडस्ट्री का, वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं. If he find the capital insufficient, then he can run business by borrowed money also from the market and from anyone relatives. अगर उसके पास जो कैपिटल कम होती है, प्रॉपरली रेशियो में नहीं होती है, तो वो अपने आसपास के लोगों से प्लस मार्केट से मनी को बोरो करके एज अ लोन के तौर पे लेकर के आ सकता है और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है. द ओनर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दिस बोरोड मनी. दिस इज अ ट्रूली राइट. ही इज अलोन फॉर सेटिस्फाइंग ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. सो whenever he wants to borrow money, at that time and after some time, he is only on one person to responsible for the return the borrowed money. थर्ड पॉइंट आता है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस. जनरली द ओनर हिमसेल्फ लुक आफ्टर द परचेज, सेल्स, कलेक्शंस, अकाउंटिंग, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज. इंडस्ट्री के अंदर या सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, it is related to purchase, sales and collections, accounting work, whatever, all the types of activities, powers in hand of the only one person, that's the sole proprietor. Means what? Owner of the sole proprietorship. He himself is the owner of the business and he himself is the manager. If needed, then help can be taken from the members of family and relatives or as a salaried persons. अगर अकेला वो सारा का सारा संभाल नहीं पा रहा है तो वहाँ पे अपने रिलेटिव्स की, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकता है, या उनके पास वो पर्सन नहीं होता या फैमिली में इतने मेम्बर्स ना हो तो एज अ सैलराइड पर्सन भी वो रख सकता है. बट ही हैव ऑल द टाइप्स ऑफ पावर इन हर एंड हिज हैंड. फोर्थ नंबर का आता है फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस. Sole proprietor has freedom regarding the business. He performs the activity of business with his intelligence and experience under the total freedom, and as he himself as the owner, he can take quick decisions with ease. He is free from all types of responsibilities, activities and whatever he wants to do. वो जो भी करना चाहे हर चीज़ से वो फ्री होता है. किसी दूसरे पर्सन का बर्डन नहीं होता है कि मैंने आपको जो कमांड दी वो करना है. तो अपने वर्क में वो फ्री है, जिस तरीके से चाहे मार्केट के हिसाब से वो डिसीजंस ले सकता है. इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन हिज एंड हर इंटेलिजेंसी एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज
he bears the all the types of losses and profit whatever earned by industry. नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लाइबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट इज अनलिमिटेड फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर. हमने जितना इन्वेस्ट किया है ज़रूरी नहीं उतना ही लॉस हो, कई बार ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा भी लॉस हो जाता है. सो हियर इज द लाइबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट इज अनलिमिटेड. Unlimited liability means that for payment of debt, the creditors can put claim on the personal properties of sole proprietors in the court of law. In other words, it can be said that when sole proprietor incur loss in the business, debt go on increasing, and for the payment of debt, if there are insufficient fund in the business, then sole proprietor is liable to pay total debt फ्रॉम एज पर्सनल प्रॉपर्टी. देखिए आपको बताया गया है कि जितना वो इन्वेस्ट करेगा ज़रूरी नहीं उतना ही लॉस हो, कई बार ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा भी लॉस हो जाता है. सो जो सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको सेल करके भी उसको अपना डेप्ट पे करना पड़ेगा. तो आज हमने 5 लायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सीखा है, तो वो आपको अच्छे से करना है. और बाकी की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हैं वो हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.